পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই গৈছো। ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে পশ্চিমবংগ। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ভেটিত বিজেপিয়ে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু এইবাৰ বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে আত্মবিশ্বাসী হৈ তেওঁলোকে কৈ আছে যে এইবাৰ পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন হ'বই। বংগৰ অলিয়ে গলিয়ে প্ৰচাৰ চলাইছে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলে। গাড়ী সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছেও প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত সমষ্টিসমূহত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে পশ্চিমবংগত। মমতাৰ যি দুৰ্গ সেই দুৰ্গক খহাবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া যথেষ্ট বিতৰ্ক হৈ আছে। তাৰ মাজতেই আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ সাংবাদিকসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তত তাত কথা পাতিছে ভোটাৰৰ সৈতে, কিন্তু তেওঁলোকে মমতাৰ চৰকাৰৰ একাংশই প্ৰশংসা কৰিছে, আন একাংশই কৈছে যে বিজেপি চৰকাৰ আহিলে ইয়াত আৰু উন্নতি হ'ব। কিন্তু মমতাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতেই মমতা বেনাৰ্জীয়ে যিখিনি তাত উন্নতি হৈছে সেই কথাবোৰো তেওঁলোকে সোঁৱৰিছে। গতিকে এই নিৰ্বাচনত ৰাইজে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, ৰাইজে কাৰ চৰকাৰ বিচাৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব। কিন্তু বিজেপিয়ে নিজৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, যথেষ্ট তেওঁলোকে এই আচলতে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে আৰু ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে ভৰি পৰিছে এতিয়া পশ্চিমবংগ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কেইবাটাও সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। আমি পশ্চিমবংগত যাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। শেহতীয়া পৰিস্থিতি কেনেকুৱা, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কিদৰে চলিছে? চাণক্য আছে মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পশ্চিমবংগৰ পৰা। চাণক্য, প্ৰতিটো খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা, আপুনি প্ৰতিটো আপডেট জনাইছে। কিদৰে এইবাৰ মমতাৰ দুৰ্গত বিজেপিয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত মমতাক হৰুৱাবলৈ তেওঁলোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছে। গতিকে বৰ্তমান তাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট কেনেকুৱা হৈ আছে? চাওক, ইতিমধ্যে মই যিহেতু কালি আহি পাইছিলোঁ পশ্চিমবংগত, আৰু পশ্চিমবংগৰ মই আহিয়ে বিশেষকৈ তাৰ আগতো কিছু কথা মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰি তথ্য পাইছোঁ। কাৰণ ইয়াৰ এইবাৰ যিহেতু নিৰ্বাচনৰ যি ছিট আছে সমষ্টি 294টা সমষ্টিৰ দুটা পৰ্যায়ত হ'ব। যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ত যিহেতু 23 তাৰিখে হ'ব, তাৰ পূৰ্বতে মই কওঁ বৰ্তমান মই য'ত আছোঁ সেয়া কলকাতাৰ এটা অঞ্চলত আছোঁ, ব্যস্তপূৰ্ণ এলেকা। আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচন এইবাৰে ব্যতিক্ৰম বুলি ক'ম। 2021 চনৰ তুলনাত এইবাৰ কিন্তু নিৰ্বাচন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ক্ষেত্ৰত। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এইবাৰ বিশেষকৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যিদৰে যুঁজ দিছে, সেই যুঁজৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৰে মুখত এইবাৰ কৈছে যে এইবাৰ কিন্তু নিৰ্বাচন একপক্ষ নহয়, এইবাৰ 50-50 বুলি সকলোৱে কৈছে। কাৰণ বিজেপিৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ যি ধৰণ বা নিৰ্বাচনৰ তেওঁলোকৰ যি আইডিয়া থাকে, যি টেকনিক, সেই টেকনিক অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে আগুৱাই গৈছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিজেপিৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছে মহিলাক টাৰ্গেট কৰিছে, সাধাৰণ জনতাক টাৰ্গেট কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ 3000 যি তেওঁলোকে স্কিম উলিয়াইছে, 3000 টকা তেওঁলোকে দিব। লগতে মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কথা কৈছে, নিবনুৱা কথা কৈছে। নিবনুৱাক কৈছে যে তেওঁলোকে এই 5 বছৰত যদি বিজেপি চৰকাৰ আহে 1 কোটি পৰ্যন্ত লোকক নিবনুৱা সংস্থাপন দিব বুলি এই কথা উল্লেখ কৰিছে। গতিকে এই কেইবাটাও তেওঁলোকে ট্ৰাম্প কাৰ্ড খেলিছে। আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ কওঁ, এইবাৰ নিৰ্বাচন কিন্তু যদি কৰি থকা হৈছে বিজেপি ভাৰ্চেছ তৃণমূল কংগ্ৰেছ, কিন্তু নহয়। একচুৱেলি যদি চাওঁ আমি গোটেই প্ৰতিছবিখন, বিজেপি ভাৰ্চেছ মমতা বেনাৰ্জী, সম্পূৰ্ণৰূপে মমতা বেনাৰ্জী। ভবানীপুৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি, যিহেতু এইবাৰো খেলিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মমতা বেনাৰ্জী। কিন্তু এই সমষ্টিটো কিন্তু মমতা বেনাৰ্জী পাৰে এখন তাকৰ নিশ্চিত এতিয়াও হোৱা নাই, ইমান হোৱাৰ পাছতো। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ এছ.আই.আৰৰ কিন্তু ইয়াত কিছু আচলতে প্ৰভাৱ পেলাইছে। এছ.আই. ইতিমধ্যে গম পাওঁ লাখ ইয়াৰ পৰা ভোট কৰ্তন গৈছে। ইয়াৰ জনতা আছে, সাধাৰণ জনতাৰ পৰা মই জানিম। अगर देखें इस बार का इलेक्शन 2021 और इस बार का इलेक्शन में क्या फर्क आपको दिखा गया है? फर्क कुछ नहीं है, यहाँ दीदी आएगा। और सबसे बड़ा बात है कि बीजेपी जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। यहाँ बीजेपी आपके हिसाब से बीजेपी क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। इस शहर के लिए हर घर में गैस के लिए हर घर में तकलीफ, सब में तो तकलीफ दे रहा है। और एक मुद्दा जो बीजेपी उठा रहे हैं 3000 वाला मुद्दा,
जो 3,000 देने का जो वादा कर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का 1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये मुद्दा काम नहीं करेगा क्या इस बार? अरे भाई 3,000 रुपया तो दिल्ली में भी बोला था कि देगा, अभी तक नहीं मिला। तुम्हारा बिहार में भी 10,000 रुपया दे के वापस मांग रहा है। आदमी उतना थोड़ी यहाँ बुर्बक है, बंगाली बहुत सियाना है। वो तो बिहारी वाला मतलब जो चल रहा है वो हवाबाजी है। सब हवाबाजी, सब जुमला है, पूरा जुमला। वो 2 लाख रुपया पहले देने वाला था, 1 पैसा नहीं दिया। जब जुमलाबाजी यहाँ नहीं चलेगा, दूसरा स्टेट और में चलेगा। बाबरी मस्जिद वाला वो जो मुद्दा, ये मुद्दा ये भी तो मैंने बनाया हुआ मुद्दा है, बनाया हुआ मुद्दा, एकदम बनाया हुआ मुद्दा। मतलब बंगाल में भी हिंदू मुस्लिम का ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं। टाइम का खेल रहा है, लेकिन यहाँ बंगाली मुस्लिम एक साथ ही रहता है, यहाँ वो सब नहीं चलेगा। मतलब फिर भी अगर 2021 और इस बार थोड़ा फर्क आएगा क्या, सेम ही रहेगा? ज़्यादा मिलेगा दीदी को ज़्यादा मिलेगा। आसन ज़्यादा मिलेगा 200 से 220 लिख के जो लिख। बोल रहे हैं लोग या हवाबाजी जो चल रहा है वो सब, मतलब क्या सब हवाबाजी है, हेलीकॉप्टरबाजी, हवाबाजी, यही चल रहा है। क्या मिला यहाँ बीजेपी से, क्या मिला? मतलब कुछ मिला क्या है? फिर से खेला होगा, फिर खेला होगा, खेला जमेगा ही क्या। आपका 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 नाम? मेरा नाम बाबला। आपका कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा पड़ता है? 57 वार्ड। 57। तो वहाँ से कौन कौन है टीएमसी से? टीएमसी से है कुणाल घोष। और बीजेपी से? बीजेपी का क्या नाम है, पार्थ घोष ना क्या है, वो टक्कर नहीं है, वो टक्कर ही नहीं आएगा। यहाँ मैंने कोई भी अगर दाड़ा था कि टीएमसी से वो निकल जाता है, इतना सेफ सीट है यहाँ। ইতিমধ্যে এজন মই সাধাৰণ জনতা পাৰ্টি তেওঁ কৈছে যে যিয়ে নহওক পুনৰবাৰ মমতা বেনাৰ্জী दीदी आइब, थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे आपसे। है। आप यहीं के हैं? हाँ, आसपास ही है मेरा। आसपास मतलब आपका कौन सा वाला? बेलेघाट असेंबली। बेलेघाट। बेलेघाट से असेंबली। मेरे हिसाब से बीजेपी से कुछ कौन खेला है? बीजेपी का कौन आप पार्टी, नाम हम लोग पता नहीं बट ये सब हमको पता नहीं है। बीजेपी टीएमसी कौन? टीएमसी से कौन? कुणाल घोष। कुणाल घोष हाँ, जीतेगा? अरे टीएमसी में अगर कोई ईटा भी रख देगा ना, किसी इंसान को भी रख देगा, ममता बनर्जी का इतना बैलेंस है, आराम से जीत जाएगा। आप क्या बोलेंगे भाई साहब? थोड़ा सा एक बार ईटा भी रख दे के चले जाएगा? हाँ, ममता बनर्जी इतना डेवलप किया। बीजेपी जो बोले वो, ममता बनर्जी हम लोग का वेस्ट बंगाल में इतना डेवलप किया ना कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन बीजेपी तो यहाँ रात को 2 बजे भी वुमेन फ्री सेफ्टी में घूम सकता है, मगर दूसरा स्टेट में ये नहीं होगा। महिला का सेफ्टी के बारे में बोल, लेकिन बीजेपी तो उल्टा बोल रहा है, महिला का सेफ्टी नहीं है, आप रेप देखा, हो रहा है। बीजेपी का जो बड़ा दूसरा स्टेट में बड़ा नेता लोग हाईवे में गलत काम कर रहा, उन्नाव केस, ये वो, ये सब में कोई आज तक कोई भी बीजेपी का एक तो भी नेता आज तक जेल गया कभी? वो लोग को तो खुद बीजेपी में जितना नेता है सब तो रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, उन लोग का एक से एक क्रिमिनल। इस बार वो मुद्दा जो आपको पता है, वो वाला रेप केस, हाँ, वो रेप केस के बारे में मुद्दा ले रहे। हाँ, वही तो पुराना चीज को गर्म कर रहा है, हवा को गर्म हवा दे रहा है। ये सब कुछ नहीं होगा यहाँ ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपको दूसरा कोई स्टेट में नहीं मिलेगा कि ईद फेस्टिवल क्रिसमस एक साथ होता है, खाली ओनली फॉर वेस्ट बंगाल में ही होता है। आप देखा इस बार क्रिसमस में हर जगह तोड़फोड़ हुआ, बंगाल में ऐसा हुआ कभी? दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, छठ पूजा होता है, ईद होता है, क्रिसमस होता है, चाइनीज न्यू ईयर होता है, सबका यहाँ फेस्टिवल होता है। सेफ स्टेट पूरा वर्ल्ड में हम लोग का, भारत में सबसे अच्छा सेफ स्टेट है ये वेस्ट बंगाल। এয়া সাধাৰণ জনতা, মই কৈছোঁ সাধাৰণ জনতাৰ, কিন্তু আমি যি দেখোঁ সেয়া বেলেগ, সাধাৰণ জনতা বেলেগ। অৱশ্যে ক্ষেত্ৰত বেলেগ। মই য'ত আছোঁ এইটো বেলেঘাটৰ কালি বেলেঘাটলৈ আচলতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছিলে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুত বৰ কথা ক'লে। দেৱেন্দ্ৰ ফাডনবিছ আহিছিলে বেলেঘাট আৰু এটা সমষ্টি, দুটা সমষ্টি তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাইছিলে দুগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কথা কোৱা ধৰণ বেলেগ আছিলে। মই বহুত সাধাৰণ জনতা আছে। दादा थोड़ा सा बात करेंगे। आप कहाँ से, ऐसे हो? जी हम तो हैं यूपी से। लेकिन वोट एक बात पूछेंगे, अब यूपी का यहाँ का कितना साल हो गया आपका? 32 साल। 32 साल में अगर देखा जाए तो आप वोट नहीं देंगे वो भी पता है, लेकिन आप 32 साल रहे ना, आप 32 साल रहे ना यहाँ पे, तो बताइए 2021 का जो इलेक्शन था, इस बार का फर्क नजर आया है कोई? मतलब हवा में अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, सेम, अभी सेम है। मतलब टीएमसी नहीं, दोनों भी हो सकता है, एक कहा नहीं जा सकता है। 2021
2021 में जो एक तरफा जैसा दिख रहा था टीएमसी वाला, इस बार बीजेपी का कोई चांस है? थोड़ा मतलब उसका तो भाई जनता के ऊपर है, हम लोग क्या कर सकते हैं। लोकल लोगों से बात करते हैं। दादा, मैं आसाम से आया हूँ, लेकिन सारा देश को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपसे बात आपका नाम दादा? आप लोग यही थे ना? कौन सा समझते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा, मतलब कौन सा विधानसभा से आपका वोट है? बेलेघाट से? ये वाला आपका कौन सा वाला? बेलेघाट है না আমাদের কোনো 105 তো কলকাতা आपका कौन सा विधानसभा? ও বিধানসভা बेलेघाट है ना? बेलेघाट में कल हम लोग गए थे। बेलेघाट के लिए महाराष्ट्र का सीएम आया था, देवेंद्र फडणवीस, बेलेघाट के बीजेपी के लिए प्रसार के लिए। तो आप अगर एक देखा 2021, दोनों को पूछे, 2021 को देखे और इस बार इलेक्शन को देखे, तो फर्क है कुछ? हाँ फर्क तो है, फर्क है। कैसा आपको पहले कैसा वाला फर्क? वो एसआईआर का फर्क है। एसआईआर का फर्क और मुद्दा वोमेन सेफ्टी का मुद्दा है। वोमेन सेफ्टी का मुद्दा होगा, आएगा महिला क्या? नहीं ये नहीं जानते हैं। ठीक है, अब फर्क जो इलेक्शन हो जाता था, इस बार एक तरफा होगा या 50-50 हो गया? आपके तरफ से कैसा हो सकता है? जोरदार दोनों तरफ, मतलब इस बार थोड़ा एक तरफा तो नहीं हुआ था अभी। आपने बोला एक तरफा नहीं होता है। नहीं जब रिजल्ट চাণক্যৰ ধন্যবাদ। আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এয়া পশ্চিমবংগত ৰাইজৰ যিসকল ভোটাৰ আছে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা, আৰু বিভিন্ন সমষ্টিলৈ আমাৰ সাংবাদিকসকল যাব আৰু তেওঁলোকে বেংগলৰ অৰ্থাৎ পশ্চিমবংগৰ বৰ্তমান কি ধৰণৰ আচলতে নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তথাপিও বিজেপিৰ তাত জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ মমতা বেনাৰ্জীয়েও বহু অভিযোগ কৰি আছে, নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপি আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ একলগ হৈ আছে বুলি অভিযোগ কৰিছে। আমি পুনৰ চাণক্যৰ কাষলৈ গৈছোঁ আৰু ৰাইজে কি বিচাৰিছে এইবাৰ পশ্চিমবংগত কাৰ চৰকাৰটো হোৱাটো বিচাৰিছে সেই কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাণক্য बारे में बोले ना, बीजेपी इस बार 3000 दे रहे और 1000 एम्प्लॉयमेंट का वादा कर रहे। एसआईआर भी है, बाबरी मस्जिद का भी वो मुद्दा उठा रहे हैं, पता नहीं ये क्या मुद्दा जो है, जो भी है ये वो पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा होता ही है। तो ये सब मुद्दा इस बार काम करेगा? हाँ काम तो करेंगे। मतलब बीजेपी का इस बार पहले से शान से हाँ बीजेपी जो आएंगे तो अच्छा काम तो करेंगे। वो तो बोलता है हम आएंगे 3000 रुपया देंगे और काम भी देंगे, ऐसा तो बोलता है। आप कितने साल यहाँ पे है? इतना 2000 मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2071, मतलब जन्म से ही यही है? जन्म से ही आपका घर बार सब यहीं पर। तो आप एक बात पूछूं, आप किसको चाहेंगे? हम तो बीजेपी की चाहिए। क्यों? वो भी देखो जो पार्टी है ना 5 साल के लिए कि 10 साल के लिए, हाँ। ऐसा ज़्यादा नहीं चाहिए तो डेवलपमेंट के लिए वो तो है। जब चेंजेस हो जाएगा तो अच्छा नहीं होता है। चेंज होने से ही हाँ, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होता है। ये बात आप सही बोले। পৰিৱৰ্তন লাগে, পৰিৱৰ্তনে সঁচাকৈ উন্নয়ন আনে যে সেইটো আমিও জানো, পৰিৱৰ্তন যিমানে উন্নয়ন নাই। গতিকে মই আৰু লোক আছে, কাৰণ সাধাৰণ জনতাক চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি কোনো ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতি লাভ নাই, কাৰণ ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ মত প্ৰদৰ্শন কৰিব, যোৰ পাৰ্টি। ইয়াৰ সাধাৰণ জনতা য'ত খাই বহি প্ৰত্যেক দিনে হাজিৰা কৰি বা প্ৰত্যেক দিনে তেওঁলোকে অতিবাহিত কৰে। দাদা थोड़ा आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट। दादा आपका मतलब कितने सालों से यहाँ पे है? यहीं पे घर है? बारी यहीं पे नहीं है, मतलब ये वेस्ट बंगाल में ही है। वेस्ट बंगाल कौन सा वाला आपका असेंबली होता है? हम लोगों का ये पांशकुड़ा, मतलब पूर्व मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। ओके। तो आप एक बात पूछो, 2021 को आपने देख लिया, पहले भी देख लिया, इस बार एक सेम तरफा होगा या थोड़ा चेंज आएगा? इलेक्शन का रिजल्ट तो मतलब क्या बोलेंगे, ऊपर नीचे होगा या सेम? ऊपर नीचे तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा। बीजेपी टक्कर देगा इस बार?
हाँ वो तो पिछले बार भी दिया था, लेकिन बात ये है कि आएगा कि नहीं आएगा वो तो वही अभी बोला, वो तो बाद में 4 मई को पता चलेगा। मैं पूछ रहा हूँ वो मुद्दा जो है 3000 वाला मुद्दा, SIR वाला मुद्दा, बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा या महिला सुरक्षा वाला मुद्दा जो खेल रहे हैं और 1000 एम्प्लॉयमेंट देने 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट का वादा कर रहे हैं 5 साल में, ये वाला मुद्दा काम करेगा? पता नहीं, क्योंकि भाई नौकरी तो सेंट्रल आप बोले भैया थोड़ा भैया कौन सा वाला नहीं करेंगे बोलिए? नहीं करेगा कोई मुद्दा काम नहीं करेगा। दीदी आएगा? दीदी आएगा, दीदी आ जाएगा बिल्कुल। क्यों आप क्यों लगता है बोलिए आपने? लगता है मतलब बीजेपी जो बोल रहे ये सब हवा है? हवा खाली चूतिया बनाना है। खाली चूतिया बनाना है। नहीं कोई बात नहीं, गलत बात नहीं गलत नहीं, जो बात है ना, गलत सब नहीं। दादा आपसे बात करेंगे, आप यहाँ से हो? यूपी से कितने साल हो गए यहाँ? यहाँ पे हमारे 5 साल हो गए सर। जी कैसा लग रहा है हवा? यहाँ पे हवा कैसे बढ़िया लग रहा है सर। कौन किस तरफ? कोई बात नहीं আৰু এইদৰে মই কথা পাতি গৈছোঁ সাধাৰণ জনতা আৰু আছে, কাৰণ মই কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকজনৰ কথা বেলেগ বেলেগ। কোনোবাই কৈছে পুনৰ মমতা বেনাৰ্জী দিদি বুলি যিহেতু কয় তেওঁক মমতা দিদি পুনৰবাৰ আহিব। কোনোবাই কৈছে কিন্তু যে যি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, কাৰণ এখন চৰকাৰ যদি এটা অঞ্চলত থাকে বা এখন ৰাজ্যত থাকে সেয়া ডেভেলপমেণ্ট কিছু কমি যায়, পৰিৱৰ্তন হ'লে হয়। সেই অৱশ্যে সেয়া সঁচা কথা। আমি যদি পলিটিকেলি চাওঁ, আমি ৰিফৰ্ম যেতিয়া হয় परिवर्तन हले হয়। সাধারণ জনতা আছে। दादा কোথায়? ना हमें एखाने डाक्टरखाना थोड़ा बात करेंगे? আৰু মানুহ আছে? বহুত লোক আছে, কাৰণ মই সাধাৰণ জনতাৰ কথা পাতি আছোঁ। দাদা थोड़ा बात करेंगे? ओके, আচলতে মই কৈছোঁ যে এইবাৰ নিৰ্বাচন কিছু ব্যতিক্ৰম, কাৰণ জোৰদাৰ অভিযান চলিছে আৰু হেভিৱেট ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ সেয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক, দেৱেশ ফাডনৱিছ হওক, আৰু ইয়াত কৈছে ইয়াত অমিত শ্বাহে 15 দিন থাকিব। অমিত শ্বাহে নিজে গৃহমন্ত্ৰী থাকি 15 দিন থাকি ইয়াত আচলতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বুলি কৈছে। দাদা थोड़ा बात करेंगे? कैसे हो? बढ़िया। आप यहाँ से हो ना? सामने ही से हूँ। कौन सा वाला आपका? ये बेलेघाट आपका होता है? नहीं, बेलेघाटा नहीं है हमारा, वो जोड़ा सांकू है। कौन सा वाला? जोड़ा सांकू। इस बार जो इलेक्शन आप देख रहे हैं, आप तो पहले भी 2021 में भी देख लिया, आप पहले वाला देख लिया, कैसा लग रहा है? मतलब हवा एक ही तरफा है या एक ही तरफ है? खाली दीदी ओनली दीदी जो निकल के आ रहा है वो सब क्या है? जो बात निकल के आ रहा है, आप जो भी देख लो, खाली ओनली दीदी। बीजेपी तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वादे सब फ्लॉप है। आप दिल्ली चले जाओ, बिहार चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, सब फ्लॉप है। तो 3000 वाला सब फ्लॉप है। SIR सब फ्लॉप है। बाबरी मस्जिद वाला सब फ्लॉप है। और एक वो खेल रहे हैं किंतु सबसे ट्रम्प कार्ड, महिला सुरक्षा के बारे में वो ट्रम्प कार्ड मिलेगा। जो दीदी दे रही है यहाँ पे, उससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला। मतलब बीजेपी जो बोल रहे हैं, सरकार तो छोड़ो, मतलब कॉन्टेस्ट में नहीं आएगा आपके सबसे? सेम रिजल्ट आएगा? सेम रिजल्ट आएगा। खेला ही होबे। लेकिन बीजेपी बोले पलटा सरकार, पलटो सरकार बोल रहे हैं, नहीं पलटेगा। आप क्या बोलेंगे दादा? क्या बोले भाई, हम लोग मेहनत करते हैं। इसीलिए हम लोग अगर नेताओं को पूछे, नेताओं के समझे को पूछे तो अलग बात बोले। हम लोग हर रोज काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए काम करने वाले लोग ज्यादा लोग तो परेशानी रहते हैं, हमेशा परेशानी, ऊपर से नीचे तक रस्सी में झूलते रहते हैं। खाली इलेक्शन आएगा तभी खाली हर झगड़ा का टाइम आएगा, और बाकी जब वोट जीत जाएगा तो कोई को नहीं पहचानेगा। 2 दिन के लिए अभी बहुत 5 साल सिर्फ होता रहता है। हाँ, और जब हार जाएगा, कोई जीत जाएगा, मेरे को बोलेगा मुझे दो, हम सबको जिसको अच्छा लगता है हम तो वोट देते ही हैं, लेकिन जब वो जीत जाएगा तो हमको पहचानेगा नहीं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इस बार कैसा लग रहा है? इस बार तो सेम ऊपर नीचे लग रहा है। ऊपर वाला जो करेगा वही होगा। टक्कर होगा बीजेपी के साथ? अब देखा जाएगा। टक्कर तो सभी के साथ हो रहा है, हम लोग का साथ भी हो रहा है, आपका साथ भी हो रहा है। वो तो है मतलब आम जनता परेशान है, आम जनता भी परेशान है, पब्लिक भी, अपने नेता भी लोग भी परेशान है। नेता क्यों परेशान है? कौन किसको वोट देगा, कौन किसका छीन के जीतेगा, यही परेशान है।
तो इसलिए बोल रहा हूँ चेंजेस आएगा। चेंजेस अब हम लोग नहीं बता सकते नहीं, भाई। नहीं, ऐसा आपको कैसा लग रहा है? ऐसा तो लग रहा है, हम तो देख रहे हैं ममता जीतेगा, कोई बोल रहा है मोदी जीतेगा। अब कौन किसको कौन जिताएगा ऊपर वाला जाने। कोई चोरी करके जीतेगा या कोई छीन के जीतेगा या कोई अपना मेहनत से जिताएगा, ये ऊपर वाला ही जाने। वही बात। आप बोल रहे हैं उसको वोट देंगे, वो बोल रहा है मुझको दो। आप देख रहे हैं उसका पास खाना खा रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं। दादा अमी आसाम से आए हैं तो थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन आपका मतलब ये मतलब असेंबली कौन सा है? विधानसभा बेलेघाटा है। बेलेघाटे तो पहले से टीएमसी का था। मतलब अगर पिछले साल भी देखे तो एक बात पूछूं, 2021 हमने देख लिया। 2021 में बोले थे बीजेपी से टक्कर होगा, नहीं हुआ। इस बार भी बोल रहे होगा, नहीं होगा। तो वही बोल नहीं हो बोला था। वो मुद्दा काम करेगा। तो बीजेपी जो मुद्दा बोल रहे हैं 3000 वाला, वो बाबरी मस्जिद वाला, तो आएगा नहीं, कैसे होगा? नहीं आएगा। आएगा तो कैसे होगा? दीदी आएगा। हाँ दीदी आएगा। এয়া চাওক আচলতে জনতাৰ মত। মই কৈছোঁ না, আপুনি য'ত যায় বেলেগ বেলেগ দেখে, কিন্তু মই ঢৌটো কৈছোঁ। আমি যি ঢৌ দেখোঁ ফেচবুকত দেখোঁ বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখোঁ বা কিছুমান সংবাদ মাধ্যমে এটা ঢৌ দেখুৱায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। কিছুমানে কৈ থাকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ক্লিন চুইপ বুলি কৈ দিছে, বা কিছুমানে কৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ক্লিন চুইপ। কিন্তু সঁচা অৰ্থত এইবাৰ কিন্তু মই যদি চাওঁ, আজি চালোঁ কেইজনমান ব্যক্তিৰ, বা কালিও মই গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টিং গৈছিলোঁ, বহু খবৰ তথ্য লৈছোঁ। যদি চাওঁ এইবাৰ কিন্তু 2021 দৰে নহয়। তথাপিও কৈ থকা হৈছে যে যুঁজখন হ'ব। সঁচাকৈ কিন্তু যুঁজখন হয় নহয় সেই কথা আমি 23 তাৰিখে প্ৰথম পৰ্যায়ত যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব, সেই 23 তাৰিখে গম পাম যে যুঁজখন হ'ব নহয়। কাৰণ এইবাৰ বিশেষকৈ বহুত ইছ্যু আছে পশ্চিমবংগৰ। সেই ইছ্যুসমূহ কাম কৰিব ডাঙৰ কথা। বিজেপিয়ে সেই ইছ্যুসমূহ ল'ব পাৰে ডাঙৰ কথা। কিন্তু সেই ইছ্যুসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কৈ থকা হৈছে যে পুনৰবাৰ মমতা দিদি আহিব বুলি বাৰে বাৰে কৈছে বহুতে। গতিকে দেখা যাওক যে নিৰ্বাচন কি হয়। কাৰণ এতিয়াও সময় আছে বহুদিন। কাৰণ ইয়াত মই কৈছোঁৱে, ভাৰতীয় জনতা মানে ইমানেই জোৰ লগাইছে, অমিত শ্বাহ ইয়াত থাকিব, 15 দিন থাকি নিৰ্বাচন পৰ্যালোচনা কৰিব। লগতে প্ৰত্যেকখন ৰাইজৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আনিছে। কেম্পেইনাৰ আনি চুকে কোনে আচলতে কেম্পেইনিং কৰিছে। মই এবাৰ আৰু কথা, দাদা ভালে আছে? एक सवाल, आप कहाँ से, विधानसभा कौन सा है आपका? एक ही सवाल, 2021 आपने देख लिया, जो था एक तरफा हो गया था टीएमसी, इस बार भी एक तरफा होगा या मतलब टक्कर होगा बीजेपी के साथ? लेकिन मेरा टक्कर होना था, लेकिन हो गए FIR करके गलती किया। कौन सा वाला गलती? FIR करे कुछ गलती क्या नहीं, वो लोग बीजेपी का होता था, लेकिन FIR करे देखिए आप SIR में गलती हो गया है। हाँ, लेकिन आपका भी देखिए कोई दादा भाई का फोटो नहीं था, बांग्लादेश भेजेगा, लेकिन वो लोग का बीजेपी का था 100%, लेकिन इस साल में नहीं होगा। इसी के लिए 100% चांस था, इसलिए इसका मेरे ख्याल से काट गया है, मेरे ख्याल से। ओ ये SIR मतलब बीजेपी को हार्म करेगा? हाँ, नहीं तो सही करने से बीजेपी का होता था। देखिए हमारा कोई रिलेटिव का नहीं उठा, बांग्लादेशी है, इधर में पैदा है, ऐसे बहुत आदमी का है। यही वो लोग गलती किया ना, नहीं इस साल में 100% चांस है बीजेपी का। एक ही गलती के लिए यही हुआ है। आपका ख्याल क्या बोलता है? आपका ख्याल में क्या बोलता है? मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा टक्कर होगा इस बार। टक्कर होगा, लेकिন এয়া SIRৰ প্ৰসংগ এজন ভোটাৰে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। SIRৰ বাবেই হয়তো বিজেপিয়ে ইয়াত পশ্চিমবংগত ক্ষমতাত আহিব নোৱাৰিব পাৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ খুবেই লক্ষণীয় হ'ব এই যুঁজখন। 2011 চনৰ পৰা মমতা বেনাৰ্জী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে। বিগত দুটা নিৰ্বাচনত তেওঁ সফলতাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে তাত ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনত কিছু পৰিমাণে হ'লেও বিজেপিৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰ কোনে গঠন কৰে সেয়াহে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। কিন্তু নিৰ্বাচনী যুঁজ এখন যে হ'ব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত। চাণক্যক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত।